تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت میٹرک امتحانات کل 4 مارچ سے ہوں گے۔ مارننگ میں عربی اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر جبکہ ایوننگ میں تاریخ جغرافیہ کا پیپر ہوگا۔ میٹرک امتحانات میں 1,74,972 طلبہ شریک ہوں گے۔ اسی پر بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے میٹرک امتحانات کا آغاز کل سے ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی۔ تمام امتحانی مراکز وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا گیا تاکہ امتحانات کو شفاف بنایا جا سکے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کی طرف سے جاری تفصیلات کے مطابق 1,74,972 امیدوار جو ہیں وہ کل سے شروع ہونے والے میٹرک امتحانات میں شرکت کریں گے۔ جنگ، توبہ ٹیکسنگ، سنیوٹ اور فیصل آباد میں مجموعی طور پر 539 امتحانی سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر تمام جو عملہ ہے اس کو مانیٹر کیا جائے گا تعلیمی بورڈ میں قائم کنٹرول روم سے، اور اس حوالے سے تمام امتحانی عملہ کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی سینٹر میں کوئی عناصر جو ہیں وہ بیرونی عناصر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو فوری طور پر کنٹرول روم کو آگاہ کرے تاکہ متعلقہ جو پولیس ہے اس کو بھی انگیج کیا جا سکے۔ اس حوالے سے تمام تعلیمی مراکز جو امتحانی مراکز ہیں وہاں پر 100 گز کی حدود میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر بھی پابندی ہے اور کوئی بھی شخص جو ہے امتحانی سینٹر میں موبائل فون سمیت کوئی بھی امتحانی مواد جو ہے وہ لے کر نہیں جا سکے گا۔ جی، تعلیمی بورڈ فیصل آباد کے تحت میٹرک امتحانات کل 4 مارچ سے ہوں گے۔ جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ رمضان المبارک میں بجلی صارفین کو سہولت فراہم کر دی گئی۔ گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے بلوں کی مقررہ تاریخ میں توسیع کا حکم۔ مقررہ تاریخ گزرنے سے قبل ہی صارفین کے بلوں میں 5 روز کی توسیع کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں، اویس علی سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ ماہ رمضان المبارک میں فیسکو نے صارفین کو سہولت فراہم کر دی ہے۔ وہ بجلی صارفین جن کے بجلی کے بلوں کی مقررہ تاریخ گزر چکی تھی ان کے بجلی کے بلوں میں توسیع کی گئی ہے اور آئندہ آنے والے جو صارفین کے بجلی کے بل ہیں ان میں بھی 5 روز کی جو توسیع ہے وہ فیسکو ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کی گئی ہے اور بجلی کے بلوں میں توسیع کی وجہ سے صارفین کے جو جرمانے ہیں ان سے صارفین کو چھٹکارا ملے گا۔ گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے بجلی کے بلوں میں 5 روز کی جو توسیع ہے وہ کی گئی ہے۔ مقررہ تاریخ سے قبل آن لائن تصحیح جو فیسکو کی جانب سے کی گئی ہے تاکہ صارفین کو سہولت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ زرعی صارفین کے بجلی کے بلوں میں بھی فیسکو کی جانب سے مقررہ تاریخ میں توسیع کی گئی تھی۔ فیسکو کام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ صارفین کی مقررہ تاریخ میں توسیع کر کے صارفین کو سہولت دی گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا اویس علی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گے ڈپٹی کمشنر شریور صفی اللہ گوندل کا رمضان بازار کا دورہ۔ سستی چینی کاؤنٹر، آٹا پوائنٹ اور دیگر سٹورز پر قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے صارفین سے ملاقات کی، سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ کہتے ہیں ماڈل بازار میں شہریوں کے لیے 16 مختلف اشیاء دستیاب ہیں۔ ضلع بھر میں 130 روپے چینی کی فروخت کے لیے 12 کاؤنٹرز قائم کیے گئے۔ سہولیات کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈپٹی کمشنر شریور صفی اللہ گوندل کا رمضان بازار کا دورہ، سستی چینی کاؤنٹر، آٹا پوائنٹ اور دیگر سٹورز پر قیمتوں کا جائزہ لیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے توبہ ٹیکسنگ میں گراں فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 2 روز میں 19,000 سے زائد انسپیکشنز کی گئیں۔ گراں فروشی پر 120 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں، مبشر حسن نقوی سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ توبہ ٹیکسنگ میں ماہ رمضان کے دوران گراں فروشوں کے خلاف انتظامیہ خاصی متحرک ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبا مسیح نے کی۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں اصل توبہ ٹیکسنگ ضلع میں ٹوٹل کتنے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں اور ہم 2 دن کے دوران ہماری کارروائی کیا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارے توبہ ٹیکسنگ میں 65 کے قریب پرائس مجسٹریٹ کام کر رہے ہیں اور رمضان المبارک میں خاص طور پہ ہماری سی ایم صاحبہ کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ بڑی سٹرکٹ جو ہے وہ ویجیلنس رکھی جائے، چیکنگ کی جائے۔ تو پچھلے 2 دنوں میں 19,000 کے قریب انہوں نے انسپیکشنز کی ہیں۔ ہم نے کریٹیکل مارکیٹس ڈیفائن کی ہوئی ہیں، پرائس مجسٹریٹس کو انشور کیا گیا کہ وہاں پہ موجود رہیں۔ کوئی 1 لاکھ کے قریب 2 دنوں میں جرمانہ ہوا ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل پرائس ہائیک جو ہے وہ نہ ہو اور نوٹیفائڈ پرائس پہ جو ہے وہ چیزیں ساری کی ساری فروخت ہوں۔ اس کے علاوہ ماڈل بازار ہم نے جو قائم کیے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ
लोगों को डिस्काउंटेड रेट पे जो है वो सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। मुकदमात में दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई 120 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हम इसमें जो है वो FIR का इंदराज भी यकीनी बना रहे हैं इन दिनों में। बिल्कुल, इंतजामिया भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। मकसद ये है कि जो सस्ती अशिया है उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इस तरह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना है कि पूरे ज़िला में कार्रवाइयाँ की जा रही है, तो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो कारकर्दगी है उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मुबशिर आपका। जंग में एशिया खुरानोश की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने एक माह में 3,31,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस के दौरान 18,200 से ज्यादा ताजिर ओवरचार्जिंग करने में मुलव्वस पाए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इंतजामिया की जानिब से जो है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पर भी ओवर चार्जिंग हो रही है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज़ायद इंस्पेक्शंस जो हैं वो गुज़िश्ता महीने के दौरान की गई हैं और इस दौरान 18,000 से ज़ायद जो हैं वो ताजर जो कि ओवर चार्जिंग के मुर्तकिब पाए गए, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। 8 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने जो हैं वो इनको आयद किए गए हैं और इंतजामिया का इस हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी और 2 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हुए हैं। 87 दुकानें सील की गई हैं और 80 से ज़ायद ऐसे ताजर जिन्होंने ओवर चार्जिंग की थी उनको हिरासत में पुलिस में लिया गया। इंतजामिया के इस हवाले से कहना है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान चीज़ें महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई जारी रहेगी। जी, रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। कमिश्नर मरियम खान का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। कमिश्नर ने FIC के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन और तोसी के हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओहदेदारान से मीटिंग भी की। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ज़ीशान असगर का जिला चिन्योट का दौरा। RPO ने DPO दफातर में पुलिस अफसरान से मीटिंग की। मीटिंग में DPO अब्दुल्ला अहमद, DSPs, SHOs और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। दौरान मीटिंग जिले में अमन व अमान की सूरत हाल, क्राइम की शरह का जायजा लिया गया। जेर तफ्तीश मुकदमात में प्रोग्रेस का भी जायजा लिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए लाने की हिदायत भी जारी की गई। नाकिस सुपरविजन पर DSP सर्कल भवाना से वजाहत तलब की गई। नाकिस कारकर्दगी पर SHO थाना भवाना लंगराना को शोकॉज भी जारी कर दिए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने अफसरान को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA हाजिर खान का कहना है कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम पर कायम होने वाली रिव्यू कमेटी में PHMA को भी नुमाइंदगी दी जाए। हाजिर खान कहते हैं PHMA सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। कमेटी में बड़ी एक्सपोर्ट तंजीम की नुमाइंदगी ना होना अजीब बात है। हाजिर खान ने इस इशू पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खत भी लिखा जिसमें यह मसला उठाया गया कि मुल्की मईशत में हौजरी मैन्युफैक्चरर्स का हिस्सा 4.4 अरब डॉलर है और EFS के मामले पर रिव्यू कमेटी में PHMA को लाजमी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने खत में वज़ीर आज़म से मजीद कहा कि PHMA को अहम स्टेक होल्डर्स की हैसियत से रिव्यू कमेटी और पॉलिसी साजी में शामिल किया जाए। कि आयशी पंजाब की हिदायत पर चिन्योट में शोहदा पुलिस की फैमिलीज में रमजान पैकेज की तकसीम। पुलिस अफसरान ने शोहदा पुलिस के घरों में जाकर अहले खाना से मुलाकात की। कहते हैं हम शोहदा को नहीं भूले और उनके वर्सा हमारी फैमिली हैं। मजीद तफसीलात बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर शुहदाए पुलिस की जो फैमिलीज हैं उनमें रमजान पैकेज की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़श्ता रोज DPO चिन्योट शहीद के घर गए थे। आज पुलिस अफसरान जो है वो शुहदा के घर गए हैं और उनकी फैमिलीज के साथ उन्होंने हाल अहवाल जो है वो पूछा है। इसके साथ साथ उनके मसाइल पूछने के साथ साथ रमजान पैकेज जो है वो IG पंजाब की जानिब से जो दिया जा रहा है वो उनमें दिया है, तकसीम किया है। इसके साथ साथ उनके जो है वो उन्हें तहाइफ भी पेश किए हैं और इस सिलसिले में DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद का कहना है कि जो शुहदा है वो हमारा फख्र हैं। किसी सूरत भी हम जो है वो उन्हें नहीं भूल सकते और जो शोहदा की फैमिलीज हैं वो हमारी फैमिलीज हैं। और इस मौका पर उनका ये कहना है कि IG पंजाब की हिदायत के मुताबिक जिला भर में जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज के साथ जो है वो राब्ता करने के साथ साथ उनमें रमजान पैकेज जो है वो तकसीम किया जा रहा है। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि IG पंजाब की हिदायत पर शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए भी तमाम तरह जो इकदाम हैं उन्हें यकीनी बनाए। बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, फैसलाबाद एयरपोर्ट के सालाना ऑडिट के हवाले से मैनेजमेंट काउंसिल का इजलास में सेफ्टी ऑडिट, फाइनेंस, एयर साइड,
फायर सेफ्टी, हंगामी मशकों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। एयरपोर्ट मैनेजर तस्नीम अख्तर ने सिविल एविएशन स्टाफ से रवां साल के सेफ्टी ऑडिट पर ब्रीफिंग दी। महकमा कस्टम्स के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। कस्टम्स हेडक्वार्टर ने महकमाना तरक्कियों के लिए स्केल 5 से 15 तक के मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली। महकमाना कवायद ज़वाबित की रोशनी में नॉन गजेटेड मुलाजमीन को अगले स्केल में तरक्की दी जाएगी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलिस्तान कॉलोनी में साइंसी नुमाइश, कहीं साइंस की कवानीन की तर्जुमानी तो किसी ने आईटी के मॉडल्स पर रोशनी डाली। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इसके दौरान इंटरमीडिएट की तालिबात ने साइंस और कंप्यूटर के मुख्तलिफ मौज़ूआत और कवानीन पर वर्किंग मॉडल्स बनाकर पेश किए। ई कॉमर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग समेत आईटी के मॉडल्स भी नुमाइश के लिए पेश किए गए। इसमें बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आ जाती है और लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो यंग जनरेशन है हमारी, अगर टाइम वेस्ट करने की बजाय अगर ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, अगर इसमें जाएं तो वो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेसिकली अगर ये हमारे खाने में ना हो, इसका मतलब फिर हमारे खाने का कोई टेस्ट नहीं होता। तो इसके बहुत से यूजेस है, जैसे ये सोडियम मेटल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में। एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम, डीपीआई कॉलेजेस सैयद अंसर, डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर बुशरा परवीन, प्रिंसिपल डॉक्टर आयशा जफर ने नुमाइश का विजिट किया और तालिबात की काविशों को सराहा। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रुखसाना कमर, डॉक्टर फरीहा अंजुम और दीगर असातिज़ा ने भी नुमाइश के दौरान मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। Of course we are on a nascent stage, we could do better. हमारे स्टूडेंट्स को अगर वो वाले रिसोर्सेज अवेलेबल हो, नंबर 1, और नंबर 2 मेंटोरशिप, जैसे हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी केमिस्ट्री की, अगर इस तरह के लोग हमें मिल जाएं तो हमारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। जब एक चीज़ प्रैक्टिकली आपके सामने आ जाती है, स्पेशली जो एंगल्स वगैरह हैं, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, अब बेशक उनको जितना मर्जी समझाते रहें, लेकिन जब तक आप उनको प्रैक्टिकली सामने रख के वो चीज़ नहीं दिखाएंगे, एक इमेज उनके जहन में नहीं बनेगा उस चीज़ का। तालिबात ने नुमाइश के दौरान बिजली पैदा करने के तरीकों, ग्रीन हाउस समेत मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को भी मॉडल्स बनाकर पेश किया और भरपूर दाद हासिल की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद।